Now recording has been started. Today we are going to start with Unit 6. Can you see this one in a full screen mode? Yes. Oh, thank you. So we are at the last unit of electronic product design. Until date, we have gone through various stages of product development, starting from capturing the requirements from the user, then finalizing those requirements, converting the requirements into the specifications, working on the specification, while designing your circuit, what kind of care we should take. Those cares for developing the hardware and software. हार्डवेयर में कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, सॉफ्टवेयर में कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, एंड काइंड ऑफ कि if we are doing a PCB design, then which kind of hurdles we may face and how to tackle those hurdles. We have seen all these points. Okay, so unit number 6, let me draw something a little over here. So requirement cell गए specification में, specs में. Okay, then from specification we do have two branches, hardware and software. Always they will work together. Okay, ऐसे कोई नहीं है कि अभी अलोन हार्डवेयर ही काम करेगा या फिर अलोन सॉफ्टवेयर ही काम करेगा. एवरीवन works in a co-design phase. Okay, co-design environment. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है, हाउ टू हैंडल दोज, क्या कहते हैं, टेक्निक्स फॉर efficient design and testing and debugging बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर debug नहीं कर पा रहे तो फिर we cannot really take out the bugs from the prototypes. We cannot really see whether our product is going to work in the real time environment. तो टेस्टिंग के लिए बहुत सारी टेस्टिंग्स देखी है. ओके, डीबगिंग के लिए भी कैसे डीबग कर सकते हैं वो देखा है. ओके, then later on we came to PCB part, PCB design. अगर PCB design करना है तो we have to think about everything starting from the component footprint. उसका footprint कैसे है, what are these electrical and physical dimensions, electrical specifications. Okay, and then we have to think about RFI और या फिर जिसको EMI भी कहते हैं, electromagnetic interference, how to handle with electromagnetic interference. We do have some standards associated with it. It is called as EMC, electromagnetic compatibility. Then also we have seen the testing in the PCB as well कि भाई कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं. We have seen the stack up arrangement, how that will help us to reduce the EMI in between the two layers, between the two layers of PCB. तो ये सारी चीजें है डेवलपमेंट. देन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, प्रोटोटाइपिंग फ्लोट करते हैं, प्रोटोटाइप्स उनको टेस्ट करते हैं रियल टाइम एनवायरनमेंट में. अगर कुछ बग आता है तो फिर रिवर्क करते हैं कि रिमूव दोज बग्स वगैरह वगैरह जो भी इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है या फिर अनवांटेड बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहा है आपका प्रोटोटाइप. देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू रिवर्क ऑन आवर डिजाइन. ये सब कुछ हो गया. You have converted user requirements into a successful product. Fine. ये तो मार्केट में लॉन्च हो गया. Now whenever we say that there are requirements from the user, most of the time those requirements are on the same line, but their requirements vary, or we can say that it is a customized according to their requirements, and that customization is hardly 10 to 20% of the प्रोडक्ट जो आपने प्रीवियसली लॉन्च किया था. मोबाइल की बात ले लीजिए कि भाई जो भी प्रोडक्ट है, सारे एंड्रॉयड मोबाइल है फिलहाल. सारे का मदरबोर्ड है, सब कुछ है, इंटरफेसिंग है. तो हर एक मोबाइल में क्या चेंज होता है कि भाई
एक तो आपका प्रोसेसर चेंज होगा, रैम चेंज होगा, मतलब इंटरफेसिंग जो है, इंटरफेसिंग कंपोनेंट जो होने वाले हैं चेंज, वो those come into the 10 to 20% change in your original product. ठीक, तो हर बार यहाँ पे मतलब जो हर एक स्टेप थी आपकी, हर बार आप हार्डवेयर पे काम करने वाले हो, सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हो, टेस्टिंग करने वाले हो, डिबगिंग करने वाले हो, पीसीबी डिजाइनिंग करने वाले हो, सब कुछ करने वाले हो। एम आई राइट? सो जो मैंने ब्लू गोल निकाले, तो ऐसे नहीं करेंगे ना कि भाई अभी नया प्रोडक्ट आया, मतलब देयर वाज प्रोडक्ट ए एंड वी हैव नाउ रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट बी एंड देयर इज अ डेविएशन ऑफ लेट अस से 20% इन प्रोडक्ट बी कंपेयर्ड टू प्रोडक्ट ए। तो ऐसे नहीं ना कि यहाँ से फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे। वी वोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वी डोंट वांट इट। यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग ऑलरेडी किया हुआ है, वी वांट टू रीयूटिलाइज इट, उसको रीयूटिलाइज करना है। कहाँ पे? इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में। So we don't start with the zero, we take references from here. अब ये references लेने के लिए मैं ऐसे डिजाइनर के पास जाऊंगा, यार मुझे बता ना वो 12 बिट एडीसी कैसे आपने इंटरफेस किया था विद स्नैपड्रैगन 830 वगैरह समथिंग। तो ऐसे नहीं होता। क्या करेंगे? जो बी प्रोडक्ट की डिजाइनर टीम होगी वो क्या करेंगे? दे विल रेफर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट ए। तो इसमें हर एक स्टेप के लिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इवन फॉर योर क्या कहते हो, जो कंपोनेंट्स यूज करने वाले हो, कंपोनेंट्स उनका बिलिंग भी होता है। ओके, क्यों लगेगा? सो दैट वी कैन डिसाइड द प्रोडक्ट बी, उसका प्राइस। तो एवरी स्टेप यू डू हैव योर डॉक्यूमेंटेशन। Without this documentation, you really cannot work. You really cannot say that my product A is foolproof and I can use the product A designs into the product B. Okay? तो डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। अभी कंपनी में कैसे होता है कि भाई जो डिजाइनर टीम है, डिजाइन टीम है आपकी, they produce some data. Designer team will produce data. डेटा किस किस प्रकार का है? कि भाई स्पेसिफिकेशंस का डेटा है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज करंट डायमेंशंस, या फिर सॉफ्टवेयर की बात आती है तो फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म, डेवलपमेंट वर्जन वगैरह वगैरह सब कुछ। तो ये डेटा प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। ये स्पेसिफिकेशंस इंजीनियर्स लिखते हैं उनकी नोटबुक में, जिसको कहते हैं इंजीनियर्स बुक, नोटबुक जो भी। इसमें सब कुछ स्क्रैचिंग में लिखा होता है। हाँ, मैंने ऐसे किया, वर्कआउट नहीं हुआ तो मैंने ऐसे किया, ऐसे कैलकुलेशंस किए, आई चेंज द कंपोनेंट वैल्यूज अकॉर्डिंगली एंड आई गॉट दिस स्पेसिफिकेशन। ये इंजीनियर्स बुक में है ना, सब कुछ लिखा होता है। मतलब फेल्यूर्स भी लिखे होते हैं और सक्सेसेस भी लिखे होते हैं, दोनों चीजें। अनदर टीम, डू रिमेंबर दैट, अनदर टीम वर्क्स ऑन डॉक्यूमेंटेशन। दोज आर आल्सो इंजीनियर्स। ओके, वो क्या करेंगे? ये जो सारे डेटा दिया था डिजाइनर टीम में, वो डेटा लेंगे, देन दे विल पुट अप ऑल दिस थिंग्स इनटू द डॉक्यूमेंटेशन। और जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ना, तो पहली बार जब भी पढ़ते हो आप, कुछ समझ में नहीं आता। इफ यू हैव एवर ट्राइड टू रीड डेटा शीट ऑफ आईसी, यू नेवर अंडरस्टैंड इट कि यार क्या कहना क्या चाहता है। थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है पहले पेज का कि भाई अच्छा ये स्पेसिफिकेशन दिए हैं, या फिर डायमेंशंस दिए हैं, या फिर इसका पिन आउट दिया हुआ है, यू डू अंडरस्टैंड दोस थिंग। लेकिन जैसे ही पेज 1 पलटते हो एंड यू गो फॉर द सेकंड पेज, you find hell lot of details about its electrical characteristics, okay, its physical dimensions,
आपने कभी आप कभी वहां पे देखते नहीं हो, बिकॉज फिलहाल तक अभी तक कभी जरूरत पड़ी नहीं है. बट इफ यू आर doing a project in hardware and if you are trying to implement your some sort of radio, okay, so starting we are from the inductor and going up to the which sort of package IC package you want to refer, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी. तो जो भी इंजीनियर ने डिजाइनर ने मेहनत की, वो मेहनत कहाँ पे आई? यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे. अगर डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है तो एवरी टाइम वी हैव टू स्टार्ट विथ जीरो. Every time that will be a costlier in terms of time, in terms of money, in terms of resources to the company. So documentation पे बहुत बहुत ज्यादा emphasize होता है कंपनी का. It has to be in a best way and a simplest way. अभी डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखोगे तो डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन इंजीनियर्स यूज करने वाले हैं. There are few other people who are going to refer the documents. Do you can you जज कि भाई आइडेंटिफाई कि डिजाइनर्स के अलावा और कौन कौन है जो डॉक्यूमेंटेशन रेफर करेगा? डिजाइनर के साथ साथ आपके प्रोडक्ट के जो ट्रेनर्स है ना, वो भी डॉक्यूमेंटेशन रेफर करने वाले हैं. इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ डीएसओ और सम सॉर्ट ऑफ एरोप्लेन गैजेट्स, सो ट्रेनर्स मस्ट ट्रेन नेक्स्ट पीपल कि भाई ये प्रोडक्ट यूज कैसे करना है, हाउ इट वर्क्स. ठीक है, तो वो ट्रेनर्स ट्रेनिंग देने वाले, तो उनका अलग से डॉक्यूमेंटेशन रहता है. देन यू डू हैव यूजर्स विच आर गोइंग टू यूज द डॉक्यूमेंट, सॉरी यूज द प्रोडक्ट एट एक्चुअल, जिसको कहते हैं यूजर मैनुअल. यहाँ पे प्रोसीजर दी हुई होती है कि भाई क्या है, कैसे है, एवरीथिंग, हाउ टू यूज इट, हाउ टू डिबग इट. Okay, so you do have various types of the documentation. Simple चीज नहीं है documentation, बहुत difficult है. You will realize while putting down your project phase 1 work into the report, your project phase 2 work into the report. When we ask you to put down your work done into the report, you really can't put your own work into the words. Okay, what you do most of the students कि भाई गूगल पे जाओ, सर्च करो, कुछ वेब पेज से कुछ कॉपी पेस्ट कर लो एंड पुट इट इनटू योर रिपोर्ट. दैट डजंट डू. एंड if you are really keen at what you have done, then you can really write 3 to 4 chapters for your work done. You simply do not write, that is the problem. Okay, you want to have some kind of fancy thing कि बहुत झकास टेबल दिखना चाहिए, बहुत अच्छे से डायग्राम दिखना चाहिए. Whatever you have done, put it into words. Those words can be refined later on. Though those words can be क्या कहते हैं कि वहां पे अगर छोटा सा कुछ लिखा होगा कि we have designed our circuit. अभी designed our circuit मतलब lots of equations, lots of component choices, lots of voltage and current ratings कि भाई इनपुट साइड से आउटपुट साइड तक हर एक कंपोनेंट का डिजाइन, अगर सिर्फ उतना भी लिखते हो ना तो भी आपके 15 से 20 पेजेस भर जाते हैं रिपोर्ट के. बट व्हाट यू डू, वी डिजाइन आवर सर्किट is shown in figure blah blah. This is not how we do. Okay, you can write down these words. We have designed our schematic and its diagram, is figure is shown below. कब लिख सकते हो कि जब आपके पास कुछ रेफरेंस है विथ योर ओन स्पेसिफिकेशंस कि जो आपके वोल्टेज और करंट के स्पेसिफिकेशन है उसका रेडीमेड सर्किट कहीं से मिल गया. देन यू कैन कोट कि भाई फ्रॉम दिस डिजाइन व्हाइट पेपर या फिर दिस एप्लीकेशन नोट वी आर रेफरिंग दिस डिजाइन एंड वी आर यूजिंग इट इन आवर प्रोजेक्ट. डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू पुट दैट वे दोज रेफरेंसेस. ओके, सो गोइंग टू आवर actual contents of the unit documentation. So what is the definition and need? What are different types of documents? What do you mean by records and what do you mean by accountability and liability? How these two things are handled by the documents.
ओके। देन ऑडियंसेस, जैसे बात की कि भाई डिजाइनर्स है या फिर ट्रेनर्स है या फिर यूजर्स है। सो आइडेंटिफाइंग योर ऑडियंस, यू हैव टू राइट डाउन द डॉक्यूमेंट इन दैट वे। अदरवाइज यूजर को अगर बोला गया कि भाई मैं मोबाइल यूज करने के लिए यूजर को ना टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन दे देता हूँ, क्या पल्ले पड़ने वाला है यूजर को? कुछ नहीं। बिकॉज यूजर इज मोर ओवर ओरिएंटेड फॉर द, क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग द डिवाइस, not how that device is manufactured or not how that device works. उनको एक्सपीरियंस की जरूरत है बिकॉज दोज आर हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट। जब भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे तो उसका प्रिपरेशन स्टेप है, उसमें कौन कौन से सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, कौन कौन से प्रिजर्व होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। ओके। डेफिनेटली जो टेक्निकल नोट्स है या फिर टेक्निकल रिपोर्ट्स है, दोज हैज टू बी प्रिजर्व्ड। ओके, because those are the utmost important from the development point of view. Then methods of documentation की कैसे कैसे कौन कौन से अलग अलग प्रकार के methods है जिसके वजह से we can create useful, efficient and simply looking documents. And to read the documents, you really need to have stable mind, calm mind, and hold on your English language if at all the document is in English language. For the international market, we always you might have seen documentation for multiple languages. एखादा अगर आपने मेडिसिन लाई है, ड्रग लाया है, ओके, तो इन दैट मैनुअल, इनसाइड द पॉकेट ऑफ दैट मेडिसिन यू फाइंड अ मैनुअल एंड वहां पे लगभग 7 से 8 लैंग्वेजेस में लिखा होता है कि भाई कैसे यूज करना है मेडिसिन। या फिर इफ यू गो फॉर काइंड ऑफ चाइनीज और कोरियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, तो वहाँ पे भी 7 से 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में आपका यूजर मैनुअल होता है। सो व्हाट काइंड ऑफ विजुअल टेक्निक्स वी कैन इम्प्लीमेंट इनटू द यूजर मैनुअल और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल या फिर ट्रेनिंग पर्पस डॉक्यूमेंट्स, सो दैट whichever is your audience, whether it is a designer or trainer or user, they must understand the thing in simple words in less times. So we do have different visual techniques, जैसे लाइन डायग्राम्स हो गई। ओके, लाइन डायग्राम जो मोबाइल की मैनुअल में होती है, या फिर एक्चुअल फोटोग्राफ्स भी रहते हैं कोई कोई मैनुअल में। ओके, then you may find some sort of tables, charts for the trainers, okay, for the designers as well. Sometimes you will have graphs. Hmm. So you do have different visual techniques जिसकी वजह से आपका मैनुअल will become simple to understand. Layout of the document. डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करना जरूरी है, okay? Starting from introduction, going through your product development stage up to your references, जो जो आपने references यूज किए हुए हैं, you can say it is a index for your report, ऐसे भी कह सकते हो। Everything has to be included into the layout of the document, starting from the purpose of the product, going up to the final stage of the product, through every step of design process cycle. Then later on, bill of material. ये क्यों लगने वाला है? First thing, you will decide the price. Second thing, you will know what sort of components we required for development of product. Components है तो उनके numbers भी आ गए, ओके, उनके कौन से मैन्युफैक्चरर से लिया था, ओके, what sort of procurement we have used, ओके, कि कहाँ कहाँ से किससे किससे कितना कितना लॉट लिया था एंड एवरीथिंग ओवर देयर. So along with these, we do have different more points to discuss about bill of material कि उसमें क्या क्या होना चाहिए. Being undergraduates, we never actually include our bill of materials in our report, but it will be very delightful to see if any one of you put the bill of material in your report. Okay.
It's really shows at what level you have worked. ओके, सो स्टार्टिंग आपने एक आधा चाराने का भी रजिस्टर लाया होगा तो इट हैज इट्स अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो 1.2 किलो होम रजिस्टर हैज इट्स ओन रोल। अगर उसको रिमूव करते तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा, तो वो 25 पैसे का भी रहा तो भी इट इज इम्पोर्टेंट। Okay. So going to the definition and need, and this will be the, I guess, last point we will discuss for today's session. So definition क्या है? Three idiots जैसे. The documentation is a formal description of a system. System can be anything. Okay. Hardware system है, software system है, कुछ भी रहे. Okay. Formal description of a system or a technical process of a development is known as its documentation. बहुत जरूरी है. Okay. It provides a foundation of understanding the product and promotes its capability and utility. क्या कर सकता है, कैसे करता है. Okay. We need to know those things. Therefore, we require the documentation. Next, it is necessary for operation, maintenance, repair, upgrades, redesigns, fixes and recalls. ये सारी चीजों के लिए डॉक्यूमेंटेशन लगने वाला है, क्योंकि मेंटेनेंस रिपेयर is a part of your service industry, upgrades once again service industry, redesigns and fixes and recalls part of your debugging and testing. We really cannot do this without the help of documentation. और ये task क्यों जरूरी है? Because it explains why the product is useful, how it may be controlled and how it works from the user perspective. Okay? Perspective क्या है? Perspective. Okay. It reduces the burden of legal liability. बहुत ज्यादा जरूरी है लीगल लायबिलिटी. आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि भाई इसको कोर्ट ने, यूएस गवर्नमेंट ने स्यू किया, उस कंपनी को स्यू किया एंड दे हैव टू पे मिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स टू द अदर अनदर कंपनी. तो लीगल लायबिलिटी, जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, क्या कहते हैं वो, 30% फ्री. ओके, तो फ्री के ऊपर ऐसे स्टार लगा देते हैं और लिख लेते हैं कंडीशन अप्लाई. क्या कंडीशंस है वो डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन कंडीशंस अप्लाई. कोई कोई न्यूज़पेपर में अगर एड देखोगे आप, तो वो ऐसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, use omega as well. So they put asterisks everywhere for their product. भाई हम जो भी क्लेम करेंगे ना, आवर प्रोडक्ट इज नंबर 1 स्टार, और स्टार लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ब्ला 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 सर्वे. यार किसने देखा वो सर्वे, किसने कंडक्ट किया? बस वो नंबर 1 में एकदम बड़ा सा छाप देंगे और स्टार जो छोटा सा छाप देंगे. वो क्या करता है? लीगल लायबिलिटी अवॉइड करता है. ओके. तो उसको कोई सू नहीं कर सकता. भाई उन्होंने बोल दिया अभी, अभी जैसे न्यूज़पेपर की फाइट चलती रहती है, महाराष्ट्र टाइम्स वर्सेस सकाल वर्सेस लोकमत. लोकमत कहता है मैं नंबर 1, मैं नंबर 1. सकाल कहता है कि मैं नंबर 1, मैं नंबर 1. सो दे ऑलवेज पुट दिस स्टार ओवर देयर. ओके. That helps us they to take the legal liability towards their product. Okay. In case of electronic products, reduces the burden of legal liability by warning hazardous operations कि ये बैटरी फूट सकती है. बी अवेयर. मतलब किसी के हाथ में बैटरी फूट गई तो भी कोई क्लेम नहीं कर पाएगा. वो क्या बोलेगा? देख भाई यूजर मैनुअल में तो मैंने लिखा था कि वो फूट सकती है. ओके. मोड्स ऑफ फेल्योर, किस किस वजह से वो प्रोडक्ट फेल हो सकता है. वो कहेंगे कि भैया अगर आपने है ना 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मोबाइल यूज किया तो इट कैन बी डैमेज्ड. और जब आपका मोबाइल फेल होता है तो वो कहते हैं कि अच्छा, हम तो देख रहे हैं कि भाई थर्मल एजिंग की वजह से आपका मोबाइल डेड हुआ है एंड इट कम्स अंडर द मोड ऑफ फेल्यूर, जो हमने मैनुअल में बोला था कि 50 डिग्री के ऊपर है ना आप यूज मत करो अगर एनवायरमेंट टेम्परेचर होगा. खलास. मतलब बंदे ने जो 30,000 का मोबाइल लिया था या फिर 1 लाख का मोबाइल लिया था, वो गया, उसको कुछ भरपाई नहीं मिलने वाली. एंड इट लिमिट्स द ऑपरेशन एज वेल. ओके. So we do have some different parts from the definition. Uh, let us cover this technical. I will give you understanding technical and user, क्योंकि वो
ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Technical is for the designers and trainers and user is for the actual user who are going to use the product. तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या वो दिखा दे डिस्कस कर लेते हैं. वायरिंग डायग्राम्स है, कंप्यूटर कोड्स है, ओके, डिटेल फार्मास्यूटिकल डिस्क्रिप्शंस है जैसे मैंने बोला था. ओके, these documents, technical documents, are intended for the experts, okay, who must make informed decision about the installation capabilities, modification and applications. जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प आउट करने वाले हैं. एंड यूजर्स आर द वन हु आर गोइंग टू यूज, who are going to understand the assembly and how to maintain your product. Okay, maintain करना है, रिपेयर नहीं करना है. Okay, maintain मतलब डस्ट नहीं बैठने देनी है वगैरह वगैरह बाकी सारी चीजें. Okay, so these are the two majorly described documents, technical and user documents. Okay, and that with said, we will end up our session. And okay.